Hello student, how are you? So today we are going to start dimension of the physical quantity. So बच्चों in this video में हम लोग स्टडी करेंगे dimension of physical quantity and also about the dimensional formula and dimensional equation of the physical quantity. So बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि what is dimension. So जैसे हम dimension की बात करते हैं तो कोई भी physical quantity हम लिखते हैं तो we always write the physical quantity in terms of product form of the basic fundamental quantity. सपोज अगर हमारा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर लिखना है, सपोज वेलोसिटी अगर आप लिख रहे हो तो अगर आप वेलोसिटी लिख रहे हो तो वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम. तो ये हमारा होता है वेलोसिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो हमारा जो डेफिनेशन होता है लेंथ अपॉन टाइम. रफली हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली इट इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बट इन डायमेंशन हम वेलोसिटी, स्पीड एक्सेट्रा ऑल आर द सेम चीज, जो कि अभी हम देखेंगे कैसे होता है. तो बच्चों जैसे हम बात करते हैं कि अगर वेलोसिटी लिखना है तो देन लेंथ अपॉन टाइम, एंड लेंथ अपॉन टाइम है इट इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस, लेंथ इंटू टाइम इनवर्स, लेंथ इंटू टाइम इनवर्स. सो हेयर वी सी the velocity is the written in the terms of length into time. That means the product of the fundamental basic quantity. Velocity equals to length into time. तो length into time velocity होता है. तो here we see कि the physical quantity जो भी हमने velocity लिखा था, this physical quantity is written in the product form of the basic fundamental physical quantity. Basic fundamental, this is the length is the basic fundamental physical quantity, time is the basic fundamental physical quantity. तो अब हम बात करें कि what is dimension. तो dimension बच्चों जो होता है हमारा यहाँ पे the exponent of the base quantity. Exponent here exponent, this is the exponent of power. तो ये जो वैल्यू होता है, the power होता है physical basic quantity का, that is called the dimension. तो here we see the velocity equals to length to the power 1 and time to the power minus 1. So बच्चों जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमने वेलोसिटी लिखा है यहाँ पे, तो हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी. तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर है इन द फर्स्ट टर्म इज 1 एंड सेकेंड टर्म इज माइनस 1. तो अगर मैं बात करूंगा कोई जनरल फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं तो लेट इट इज जनरल फिजिकल क्वांटिटी जेड, एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी रिटन इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी. तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी हम यहाँ पे एज्यूम करें कि a टू द पावर m है, b टू द पावर n है एंड c टू द पावर l है. z इट इज द फिजिकल क्वांटिटी, z इज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज रिटन इन द टर्म्स ऑफ बेसिक fundamental physical quantity. That is A, B and C is the basic fundamental physical quantity, and the exponent या power of A is M, B is N and C is L. तो यहाँ पे these are the what? ये हमारा है base. This is the base है. Base basic fundamental physical quantity का है. Basic fundamental physical quantity and the exponent और power जो हमारा है m n l, these are the power और exponent, power और exponent. तो अगर मैं बात करूंगा कि what is dimension, तो dimension की बात करेंगे बच्चों. तो dimension is the exponent or power of the basic fundamental physical quantity which is written in the product form. तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि what is of dimension. तो write down the definition of dimension. तो अगर मैं definition of dimension की बात करते हैं बच्चों तो write down this. So अगर मैं बात करूँ definition of dimension की अगर बात करता हूँ बच्चों, तो definition of dimension की बात कर रहे हैं तो the exponent of power of the base quantity that enter into the expression. सपोज यहाँ मैं बात कर रहा हूँ z इज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो हमारा है a b c इज द बेस और इट इज बेसिक फिजिकल क्वांटिटी.
and the exponent or power, the power of A is m, power of B is n and power of C is l. तो मैं बोल रहा हूँ कि the exponent or power of base quantity, exponent of power, these are the exponent of these are the base. तो हम देख रहे हैं कि exponent or power of the base quantity that enter into the expression, this is the expression, okay. तो यहाँ जो भी इसके जो पावर है that is called the dimension of the physical quantity, इस डायमेंशन का. तो अगर मैं बात करूँ z अगर डायमेंशन की बात करता हूँ बच्चों, तो द डायमेंशन ऑफ z इज रिटन लाइक m जो है m इज द डायमेंशन ऑफ a, n इज ए डायमेंशन ऑफ b and l इज द c. तो कंबाइनली अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ z, तो डायमेंशन ऑफ z की बात करते हैं तो m इंटू द बेस a, n इंटू द बेस b and l इंटू द बेस c. These are collectively called the dimension of z, dimension of z. Hence अगर मैं बात करता हूँ कि डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन, तो डायमेंशन की डेफिनेशन की बात करेंगे तो एक्सपोनेंट ऑफ पावर, एक्सपोनेंट ऑफ पावर ऑफ base quantity, exponent or power of base quantity that enter into the expression is called dimension of that base, dimension of that base. तो इस तरह से हमारा डायमेंशन का डेफिनेशन है. अब मैं बात करूंगा एक जनरल में एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इसको आप फॉर्मूला फटाफट लिखिए. अब बच्चों मैं बात कर रहा हूँ, सपोज हमारा फोर्स है, तो फोर्स की अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूँ, इसको लिख लिया आपने, ओके. तो अब मैं बात करूंगा फोर्स. तो फोर्स की अगर बच्चों में बात कर रहा हूं तो फोर्स व्हाट, अगर मैं फोर्स की बात, तो जैसा कि 9th में आपने पढ़ा होगा, तो जो फोर्स होता है व्हाट, तो फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन. तो अगर मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इट मींस कि मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इट मींस व्हाट, दिस इज द मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है. अब मास की अगर मैं बात करूं तो मास इज द ऑलरेडी द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो मास रिटन इज लाइक दिस, एज इट इज मास तो ऐसा ही रहेगा टू द पावर 1. अब मैं बात करूंगा एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन की बच्चों को मैं बात करता हूं, तो जैसा कि आपको पता है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम. और वेलोसिटी की बात करेंगे तो अभी मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और जो भी है लेंथ अपॉन टाइम. तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो दिस इज द मास, वेलोसिटी इज रिटन लाइक लेंथ बाय टाइम, और एक टाइम पहले से था, एक टाइम पहले से था. तो अगर इसी को अगर मैं यहां पे अगर मैं लिखूं तो यहां पे हमने जो फोर्स का डायमेंशन देखा, दिस इज द मास into length upon time square, upon time square, or we can write like this, mass into length into time का पावर -2. तो ये हमारा फोर्स है. तो अगर मैं बात करूंगी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो देखिए फोर्स का डायमेंशन तो मास का पावर 1 कुछ नहीं है, तो एज्यूम करते हैं बाय डिफॉल्ट 1 पावर. तो मैं अगर फोर्स की डायमेंशन की बात करूंगा तो 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम. ये हमारा डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है, 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड 1 इन टाइम. तो इफ यू हैव टू राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ फोर्स, देन आप लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि राइट डाउन डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स जो आप लिखोगे कैसे लिखोगे बच्चों, तो 1 इन मास, 1 इन मास, 1 इन लेंथ, 1 इन लेंथ एंड -2 इन व्हाट, -2 इन टाइम. तो ये हमारा डायमेंशन ऑफ फोर्स होगा. अगर आपसे पूछा जाता है कि डायमेंशन, तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 in mass, 1 in length and -2 in time. But
दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड प्रोसेस टू राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका मतलब है कि इस तरह से हमारा लैंग्वेज फॉर्म में डायमेंशन लिखना क्या सही लग रहा है कि आपको देखने में? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कतई अलाउड नहीं करता है। अगर मैं बात करूंगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोलता है कि इस तरह से आपको लिखना सही नहीं, तो आपको लिखना पड़ेगा सिंबॉलिक फॉर्म में। तो बच्चों व्हाट इज सिंबॉलिक फॉर्म? तो सिंबॉलिक फॉर्म में जो भी हमारा बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका एक स्टैंडर्ड हमने सिंबल दिया है डायमेंशन में। तो जो सिंबल दिए हैं वो हमें आनी चाहिए। तो क्या क्या सिंबल आपने दिया है वो आप देखिए पहले, और उसके बाद उसी चीज को अगर मैं जो आप लिख रहे हो एक्सपोनेंट, तो वहां पे हम दूसरे तरीका से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो सिंबल यूज जो हम डायमेंशन में हम करते हैं वो क्या है। तो यहाँ देखिए कि क्या है सिंबल, इसको लिखिए आप फटाफट। ओके बच्चों, तो अब मैं बात करूंगा कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन। तो अगर मैं बात करूंगा सेम थियरी में लिखेंगे, तो देखिए सिंबल जो हम यूज करते हैं डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एक वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, द सिंबल यूज्ड to represent the dimension, क्या क्या सिंबल यूज कर रहे हो बच्चों? तो यहाँ पे जो मास हमारा है, तो मास के लिए हम कैपिटल एम यूज करते हैं। मास के लिए कैपिटल एम हम यूज करेंगे। लेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो लेंथ के लिए एल यूज करते हैं। टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो टी यूज करते हैं। अगर मैं बात करूंगा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए अगर मैं बात करूंगा तो केल्विन यूज करेंगे। अगर मैं बात करूंगा करंट, तो करंट के लिए हम आई यूज करते हैं। और आपका जो बच गया अमाउंट ऑफ सबस्टांस एंड मोल, तो वो एज इट इज हम लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टांस की अगर बात करेंगे या मोल जो भी है, तो अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसको आप मोल ही लिखते हो, MOL। एंड लुमिनस इंटेंसिटी, एक यहाँ पे बच रहा है लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी को अगर आपको लिखना है तो इट इज रिटन एज ए कैंडिला, इसको हम यूज करेंगे CD। तो इस तरह से हम जो सिंबल यूज करते हैं, तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी हम यूज करते हैं, तो मास को M, लेंथ L, टाइम T, टेम्परेचर K, करंट I, अमाउंट ऑफ सबस्टांस मोल N, लुमिनस इंटेंसिटी इज कैंडिला। These are the symbol used to find dimension of the physical quantity. So अब इसी को अगर मैं बात करूंगा, जो हमने फोर्स का डायमेंशन हमने लिखा है, तो इसे अगर आपको लिखना होगा तो मास कैन बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट? मास कैन बी रिप्लेस्ड बाय M, लेंथ कैन बी रिप्लेस्ड बाय L एंड टाइम रिप्लेस्ड बाय T। तो जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था फोर्स का जो हमने लिखा था, तो अब मैं बात करूंगा इसी चीज को अगर आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो फोर्स जो हमारा है, तो फोर्स का अगर हम बात करेंगे तो मास आपने क्या लिखा था? मास 1, लेंथ 1 एंड टाइम -2। बच्चों इसी को अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं बात करूंगा डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे M, और इन जनरल हमारा प्रोसीजर होता है कि इसको हम कैपिटल ब्रैकेट में हम डाल देते हैं M, L का 1 एंड टाइम का -2। तो फोर्स की अगर मैं डायमेंशन की बात करूंगा, तो दीज आर द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन। These are the standard representation of dimension where exponent जो हमारा होता है, तो exponent of mass that is M is 1, exponent of L is 1 and exponent of T that is time is -2। यहाँ पे आपको डायमेंशन पूछा जाता है तो आप ये लिखिए, और बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि इसके जो पावर होता है वो डायमेंशन होता है, ये वाले नहीं होते हैं। आपको सिर्फ पावर ही है जो ही डायमेंशन होता है, तो इस चीज को ध्यान देना है। अब मैं बात करूंगा कि डायमेंशन कुछ हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला में यूज करेंगे, और जो भी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है उसका हम डायमेंशन निकालते हैं। तो बच्चों उसको लिखिए फटाफट। ओके, तो नाउ अब मैं बात करूं आपको कुछ आपको फाइंड आउट करना है डायमेंशन। तो डायमेंशन आप फाइंड आउट करोगे तो एक दो आपको मैं बोलूँ कि वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड करिए फटाफट। अगर वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड करना है
तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम। तो लेंथ का हमारा एल ही होगा एंड टाइम का टी होगा। तो इसे हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, डिवीजन फॉर्म में हम नहीं लिखते हैं। तो टी ऊपर जाएगा तो एल ऐसा ही रहेगा, टी ऊपर जाने के बाद क्या आ जाएगा, टी टू दी पावर -1, और इसका पावर नहीं कुछ भी है, बाय डिफॉल्ट 1 पावर है। तो इट मीन्स की वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा दैट इज एल 1 एंड टी -1। तो यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, तो 1 in length, 1 in L and -1 in time, -1 in time. So this is the dimension of physical quantity, that is exponent, इसका exponent या power, 1 in length and -1 in time। तो इस तरह से बच्चों हमारा डायमेंशन का डेफिनेशन है। अब मैं बात करूंगा कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेंगे और साथ में इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो इसको आप लिखिए फटाफट। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर मैं बात करूंगा कि व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, तो जैसे ही बच्चों अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब होता है कि कोई भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है इन द फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मूला या इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। तो मैं बात करूंगा कि व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, it is the expression which shows how a basic physical quantity represent a physical quantity। कोई भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मैं बात करूँ कि सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अभी हमने बोला था वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का डायमेंशन ये बात करूँ, या अगर मैं बात करूँगा एनर्जी ले लीजिए आप, तो अगर मैं बात करूंगा कि काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि आप जानते हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, हाफ mv²। तो हाफ mv² की बात करेंगे तो ये जो हमारा होता है कांस्टेंट पार्ट होता है। कांस्टेंट पार्ट को हम कभी भी डायमेंशन में हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अभी मैं क्या क्या आपका जो रिमूव करना है, जो भी मेन पॉइंट्स है मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को हम नहीं यूज करते, तो यहाँ पे दिस इज द मास एंड दिस इज द वेलोसिटी। तो अगर मैं बात करूंगा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इट कैन बी रिटन एज दिस इज द मास, दिस इज द मास एंड वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो अगर बच्चों मैं बात करूंगा कि व्हाट इज द मास, तो मास का हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन m लिखा है, दिस इज द लेंथ, लेंथ स्क्वायर एंड दिस इज द टाइम स्क्वायर, टाइम का हमने t² कर दिया। तो अगर मैं बात करूं कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इट इज रिटन लाइक m टू द पावर 1, l टू द पावर 2 एंड t टू द पावर -2। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चों कि द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज m का एक्सपोनेंट 1 या पावर 1, लेंथ का पावर 2 एंड टाइम का पावर -2। तो यह जो हमारा है डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं तो जो भी फॉर्मूला हम बेस क्वांटिटी को लेकर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी मीन्स व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इट इज द फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में आपने बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या यूज किया हो, मास यूज किया हो, लेंथ यूज किए और टाइम यूज किया आपने। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी आपने रिप्रेजेंटेशन किया है, जो भी फॉर्मुलेशन किया है, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड द व्हाट, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब मैं बात करूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों अगर मैं बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लूंगा मैं यहाँ पे। तो देखिए फटाफट 2-3 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ओके चलो। तो अब मैं 2-3 क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सपोज हमारा वेलोसिटी अगर है, पहले मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो लेंथ क्या होता है, लेंथ सिंपली अगर लेंथ है 1 डायमेंशन,
तो लेंथ का अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो सिंपली लेंथ का डायमेंशन ये होगा। अगर मैं बात करूंगा एरिया, तो एरिया का डायमेंशन की अगर बच्चों बात करूंगा तो क्या होता है, एरिया लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इज ऑल्सो ए लेंथ, ब्रेड्थ क्या होता है, लेंथ ही तो होता है। तो इट मीन्स कि लेंथ इंटू लेंथ। तो अगर मैं बात करूंगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो ब्रेड्थ इज ऑल्सो कंसिडर एज ए लेंथ। तो यहाँ पे हमारा एल स्क्वायर। तो अगर डायमेंशन ऑफ एरिया की बात करूंगा तो डायमेंशन ऑफ एरिया इज व्हाट, एल स्क्वायर। अगर मैं बात करूंगा वॉल्यूम का डायमेंशन, तो वॉल्यूम का डायमेंशन की अगर बात करूंगा तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। अगर हम कोई भी अगर आप बात करते हो तो वॉल्यूमेट्रिक अगर आप बात करते हो, वॉल्यूमेट्रिक में तीनों ही कंसीडर होते हैं, आइदर इंक्लाइंड कोन के लिए ले लो या आप सिंपली क्यूब और क्यूबॉइड के लिए ले लीजिए। तो फॉर्मूला अलग अलग होता है, लेकिन कहने का मतलब वही होता है कि एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया इंटू हाइट, तो एरिया क्या है, दिस इज द एरिया इंटू हाइट, हाइट इज ऑल्सो कंसिडर एज ए लेंथ, हाइट इज ऑल्सो कंसिडर एज ए लेंथ। इट मीन्स अगर मैं बात करूंगा वॉल्यूम का डायमेंशन, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, दिस इज द एल स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो एल। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, एल क्यूब, एल क्यूब। तो इस तरह से अगर मैं बात करूंगा डेंसिटी, अब मैं बात कर रहा हूँ डेंसिटी का डायमेंशन। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला अगर मैं बात करूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है। तो मास का तो एम ही होगा, मास मीन्स एम, एंड वॉल्यूम का अभी आपने फाइंड आउट किया एल क्यूब, दिस इज द एल क्यूब। अगर हम यहाँ पे डेंसिटी का अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूंगा तो दिस इज द एम इंटू एल का पावर -3। तो इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फाइंड आउट कर सकते हो, जबकि आपको पता होना चाहिए सिर्फ उसका फॉर्मूला क्या है। अगर आप फॉर्मूला अगर आप जानते हो तो डायमेंशन इजीली फाइंड कर सकते हो। उसके यूनिट्स आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या यूनिट्स आप यूज कर रहे हो। तो इस तरह से हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला का जो डेफिनेशन है, और इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बच्चों में बात करूंगा कि व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन, तो इसको आप राइट डाउन कीजिए फटाफट। तो इसके बाद हमारा जो बच्चों टॉपिक है डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन की बात करते हैं। तो डायमेंशनल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है विच रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इनफैक्ट फॉर्मूला और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट इसको हम इक्वेशन फॉर्म में देते हैं और उसे हम डायरेक्टली हमने एक जो गिवन बेस क्वांटिटी था उसके टर्म में लिख दिया। तो अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन, तो डायमेंशनल इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा तो द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, which represent dimension of physical quantity in terms of base quantity is called the dimensional equation। अब डायमेंशनल इक्वेशन सपोज हमने अभी बात किया था लेंथ का, तो लेंथ का जैसे आपने बात किया तो लेंथ में आपने क्या देखा था कि लेंथ का डायमेंशन आपने सिर्फ एल देखा था। तो ये हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ था, लेकिन इसी को अगर मैं इक्वेशन के टर्म में बात करूंगा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द लेंथ, तो इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसकी डायमेंशनल इक्वेशन की बात करूंगा तो इसमें हम सारा ही टर्म बात करेंगे, एम एल टी और जो भी है बाकी सारे जो। तो इसमें हमारा जो देख रहे हैं कि एम का पावर क्या, इसमें जो लेंथ में जो हमारा था तो लेंथ में हमारा सिर्फ एल था। अब इसकी डायमेंशनल इक्वेशन के फॉर्म में हम बात करेंगे तो एम की पावर 0, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0 एंड अदर्स जो भी है, के की पावर 0, वॉट एवर द वैल्यू ऑल। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि डायमेंशनल इक्वेशन अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ तो 0 इन एम, 1 इन एल, 0 इन टी, 0 इन के, 0 इन आई, 0 इन मोल एंड कैंडिला। तो इसकी अगर आप डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ लेंथ की बात करेंगे तो हम बात करेंगे 0 इन एम, 0 इन एम, 1 in L, 1 in L एंड 0 in T। इस तरह से सारे। तो अगर मैं बात करूंगा इसी तरीके से अगर
एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा जो भी है डायमेंशन इक्वेशन, तो उसमें अगर हम बात करेंगे एरिया की, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एरिया की क्या करोगे डायमेंशन इक्वेशन में, तो एरिया हमारा एल स्क्वायर था, एरिया हमारा था एल स्क्वायर, तो इसको हम क्या करेंगे एम का बेस का पावर क्या आएगा 0, एल की पावर 2 होगी, टी की पावर 0, के की पावर 0। तो इतना तो आप लिख नहीं सकते हो बच्चों। तो इसमें सिंपली हम लिखेंगे कि अगर डायमेंशनल इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा एरिया का, तो 2 in L and 0 in remaining all, 2 in L and 0 in remaining all। तो अगर मैं बात करूंगा सिंपली, अगर इसको आप लिख लीजिए, ओके। तो देखिए, तो अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी डायमेंशन का, तो सिर्फ बात हम करेंगे 2 in L and 0 in remaining all, तो बाकी सारे में 0 होगा। तो इस तरह से एक डायमेंशनल इक्वेशन रिप्रेजेंट करने का टेक्निक्स है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूँ, 5-6 क्वेश्चन लूंगा जो कि सारा आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा डायमेंशन कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो बच्चों अब मैं फटाफट एक एक क्वेश्चन हम लिखते जा रहे हैं, आप उसको राइट डाउन करो। पहले तो आपको 2 मिनट में टाइम दूंगा और उससे आपको ट्राई करना है पहले, फिर मैं फाइंड आउट करूंगा। तो फाइंड द डायमेंशन, आपको डायमेंशन फाइंड करना है। फर्स्ट आपका है फाइंड आउट करना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है। आपको फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ G, ओके। तो देखिए, अगर मुझे डायमेंशन फाइंड आउट करना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G का, तो सबसे पहले हम G लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑल क्वांटिटी जो भी हमारा है। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूला को अल्टरेशन करो एंड G इक्वल्स टू लिखिए, G इक्वल्स टू व्हाट, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ओके। तो बच्चों यहाँ पे हमारा दिस इज द फोर्स, ओके, एंड दिस इज द लेंथ स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। तो फोर्स का अभी हमने देखा था वो क्या था, देखो ML1 T-2, ये हमारा फोर्स का था, ये था हमारा फोर्स का डायमेंशन। अब मैं बात करूंगा डिस्टेंस का, तो दिस इज द L, तो ये हमारा आ जाएगा L स्क्वायर। नीचे हमारा क्या है, मास इंटू मास, तो ये हमारा आएगा मास का m ही लिखते हैं एंड दिस इज ऑल्सो रिटन लाइक m। तो इसको आप रीअरेंज करो, ये कैंसिल हो गया 1 मास। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा m ऊपर गया -1, L1 इधर है 2, तो ये टोटल क्या पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 2 क्या हो गए 3, एंड t की पावर -2, तो t इक्वल्स टू -2। तो अगर मैं बात करूंगा डायमेंशन ऑफ G, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट G की अगर मैं बात करूंगा, तो ये आपका डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट G का डायमेंशन m इन -1, L इन 3 एंड -2 इन t। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से बच्चों अगर आपको फॉर्मूला गिवन है, इफ यू नो द फॉर्मूला देन यू कैन फाइंड आउट डायमेंशन इजिली। बस आपको रीअरेंज करना है इक्वेशन को, ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो 1-2 और मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसको आप पहले राइट डाउन करो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। सो बच्चों अब हम फाइंड आउट करेंगे कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन S। इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, जिसका मैं अभी आपको पता नहीं तो मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, और जो भी पैरामीटर हम यूज करना है फिजिकल क्वांटिटी सारे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। तो थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है Q इज द, जो कि Q हमारा जो हीट एनर्जी होता है, दिस इज द हीट एनर्जी K इंटू A इंटू θ2 - θ1 इंटू T अपॉन D। ये काफी आपको लग रहा होगा पेचीदा टाइप का, बट
सारे के सारे ये चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी जो कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले में अगर मैं बात करूंगा सरफेस टेंशन का, तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है रो जी आर एच अपॉन 2। रो हमारा डेंसिटी होता है, डेंसिटी रो जो कि अभी मैंने बताया। जी क्या होता है बच्चों, एक्सलेशन होता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर जब भी डायमेंशन आप फाइंड आउट करते हो तो डायमेंशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको, जैसे एक्सलेशन है तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू फोर्स, एक्सलेशन ड्यू टू एयर, कैसे आया उससे मतलब नहीं है, एक्सलेशन मतलब एक्सलेशन। तो एक्सलेशन का जो सारे डायमेंशन सबका सेम होता है, एवरी एक्सलेशन हैविंग द सेम डायमेंशन। तो अगर इसकी डायमेंशन भी हमारा जो एक्सलेशन का डायमेंशन है वही डायमेंशन होगा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। एंड आर इज द रेडियस एंड एच इज द डिस्टेंस या हाइट। तो अगर आपको इसकी सरफेस टेंशन का डायमेंशन फाइंड करना है तो आप क्या लिखोगे, ये आपका डेंसिटी है, तो डेंसिटी हमने अभी बताया था मास पर यूनिट जो भी आपका वॉल्यूम है। तो एम बाई, अगर मैं बात करूंगा डेंसिटी का तो मास पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करूंगा तो एम बाई, और वॉल्यूम का क्या था हमारा एल क्यू। तो इसकी डायमेंशन तो हमारा यही रहा। अगर मैं बात करूंगा एक्सलेशन का तो एक्सलेशन क्या था हमारा एल टी माइनस टू, एल या एल टी स्क्वायर आप कर लो, अभी मैं बात कर लूंगा। एन ए आपका क्या है, रेडियस मतलब लेंथ ही होगा, और ए एच, एच इज ऑल्सो हाइट दैट इज द लेंथ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेंसिटी जो हमारा था, डेंसिटी बेसिकली क्या है, डेंसिटी का डायमेंशन आपका क्या मास पर यूनिट वॉल्यूम था, यही तो हमने बताया था अभी आपको, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका आपने सिंपली ये किया, वॉल्यूम का एल क्यू अभी हमने बोला था। एक्सलेशन है तो एक्सलेशन का डायमेंशन क्या था आपका एल टी माइनस टू, या लेंथ पर ले टी स्क्वायर, तो एल टी माइनस टू मतलब एल बाई टी। आर इज द लेंथ एंड एच इज द लेंथ। अब यहाँ से हम देख रहे हैं बच्चों कि इन चीज़ों को अगर आपको फाइंड आउट करें तो कांस्टेंट को हम इग्नोर करते हैं। जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं तो कांस्टेंट को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसको आप सोल्व कर लो सिंपली। तो ये एल क्यू है, ऊपर दो एल है, तो दोनों एल क्यू, तो यह दो पावर यहाँ माइनस हो गए। तो हेयर एम वन, अब लेंथ यहाँ पे है और ए लेंथ और ए लेंथ भी कैंसिल होगा, तो ए कैंसिल हुआ लेंथ। इट मीन्स कि 3 लेंथ ऊपर था और एल क्यू नीचे था, कैंसिल। अब टी ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर माइनस 2। तो अगर मैं सरफेस टेंशन की डायमेंशन की बात करूंगा तो एम में की पावर 1 एंड टी की पावर माइनस 2, एम की पावर 1 एंड टी की पावर माइनस 2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। डायमेंशन इसका एक्सपोनेंट की बात करते हैं, तो 1 इन मास एंड माइनस 2 इन टाइम। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। अब बच्चों मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो अब देखिए, अगर डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का पहले आपको फॉर्मूला तो पता है नहीं, तो मैं आपको फॉर्मूला दे दिया कि जो थर्मल कंडक्टिविटी जो हमारा हीट में हम पढ़ेंगे, तो हीट एनर्जी जो होता है, तो हीट एनर्जी जो Q इक्वल्स टू K इंटू ए इंटू थीटा टू, चेंज इन टेम्परेचर इंटू टाइम, ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू टी अपॉन डी। तो आपको फाइंड आउट करना है इसकी डायमेंशन। तो सबसे पहले आपको K के टर्म में सारा इक्वेशन लिखिए। तो K इक्वल्स टू Q इंटू डी अपॉन ये जो भी ऊपर पैरामीटर है A इंटू थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू टी। अब बच्चों अब बात करोगे कि व्हाट इज Q, तो Q इज द हीट एनर्जी। अब एनर्जी अभी हमने बोला कि डायमेंशन यूज करेंगे तो एनर्जी कैसे भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या जो भी एनर्जी हो, तो सारे के सारे एनर्जी का हम डायमेंशन एक ही होता है। तो अगर अभी हमने बात की तो डायमेंशन का जो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टू टी माइनस 2। ये हमारा एनर्जी का डायमेंशन हो गया जो कि अभी हमने बताया था। डी लेंथ है, डी द फिजिकल क्वांटिटी किसका, लेंथ का, तो डी का आपने एल लिखना है। इसके बाद आप क्या करोगे, एरिया, एरिया का भी हमने बताया। तो एरिया का क्या होता है बच्चों, एल स्क्वायर, एरिया का एल स्क्वायर। और एक चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब अब डायमेंशन लिखने टाइम में, डायमेंशन लिखने टाइम में इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू या चेंज, ये सारे नहीं बताता है।
अगर चेंज अगर है तो इट्स ओके, इट इज द चेंज इन टेम्परेचर दैट इज थीटा। थीटा की अगर बात करूँ तो केल्विन। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी डायमेंशन का चेंज इन टेम्परेचर, इट इज रिटन जस्ट लाइक केल्विन के। इसकी डायमेंशन क्या होगा, के होगा। एंड लास्ट वन इज द टाइम। टाइम का डायमेंशन हमने क्या बोला था, टी। अब इसे आप सॉल्व कर लो। जैसे इसे सॉल्व करोगे तो आप फाइंड आउट कर लोगे किसका डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो m जो हमारा है l स्क्वायर है, ए l से l इसको कैंसिल करो, t ऊपर जाएगा k, तो a हमारा बच गया m की पावर 1, k ऊपर गया k माइनस 1, l ए t है और t एक नीचे है, तो a आपका क्या हो जाएगा, पहले तो l ऊपर है ही ऑलरेडी, एक बच रहा है, और t टू द पावर माइनस 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों कि डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल्स टू m का पावर 1, k की बात कर रहे हैं तो k ऊपर गया, k की पावर माइनस 1, एंड l यहाँ बच रहा था एक, l की पावर 1, एंड t माइनस 2 एक ऊपर चला गया तो माइनस 3। तो इस तरह से आपका डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो इस तरह से हम बात करते हैं। कोई भी फॉर्मूला अगर आपको पता है, जो कि आप फिजिक्स जैसे ही 11th खत्म होगा तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से जान जाओगे कि क्या होता है, तो ये चीज़ आप जान जाओगे। इसीलिए हम बात करें कि थर्मल कंडक्टिविटी या किसी भी अगर चीज़ का अगर आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट राइट द फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला, इक्वेशन, देन इक्वेट करो। तो इसको लिखिए फटाफट। तो अब मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। तो जैसे ही आप डायमेंशन लिखते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि कांस्टेंट कैन नॉट बी कंसीडर इनटू द डायमेंशन। जब भी आप डायमेंशन लिखते हो उस टाइम कांस्टेंट को कंसीडर कभी नहीं करना है डायमेंशन में। तो व्हेन वी राइटिंग द डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशन फॉर्मूला, देन कांस्टेंट कैन नॉट बी कंसीडर इनटू द एक्सप्रेशन। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में बात कर रहा हूँ कि डायमेंशन कैन नॉट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, चेंज या मैग्नीट्यूड। इस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन डायमेंशन नहीं देता है। डायमेंशन जब भी आप लिखते हो इसका कोई मतलब नहीं कि इनिशियल वैल्यू क्या था, फाइनल वैल्यू क्या था, मिडल में क्या वैल्यू आ रहा है या कितना चेंज हो रहा है। सिर्फ वो फिजिकल क्वांटिटी जानता है। फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है तो लेंथ है, लेंथ का मतलब उससे डिस्प्लेसमेंट में फर्क नहीं समझता है, डिस्टेंस में कोई उसको डिफरेंस नहीं समझ में आता है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को सेम समझता है डायमेंशन में। तो इसीलिए इन चीज को हम हमेशा अवॉइड करते हैं, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, चेंज वैल्यू या मैग्नीट्यूड। इससे कोई कंसर्न नहीं होता डायमेंशन में। तो सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में बात करूंगा कि डायमेंशन ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर एक ही कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है इन डिफरेंट फॉर्म तो सभी का डायमेंशन एक होता है। अगर जैसे कि मैं बात करूंगी वर्क, तो वर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आपने 9th में पढ़ा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क डन होता है। तो अगर मैं बात करूंगा वर्क डन ये होता है, फिर एनर्जी भी हमारा यही होता है। तो एनर्जी का भी डायमेंशन यही होगा, वर्क का डायमेंशन यही है, एनर्जी का डायमेंशन यही है। अगर मैं बात करूंगा एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन नहीं होगा। तो इस तरह से एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में जो भी एनर्जी है सारे एनर्जी का डायमेंशन एक होता है। उसी तरीके से मैं बात करूंगा एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स हो या एक्सेलरेशन किसी दूसरे वजह से हो, तो इस सभी का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, एक होगा। तो इन चीज को आपको अच्छा से समझनी है। जब भी डायमेंशन लिखो तो इन चीजों को आप बारीकी से समझना है डायमेंशन लिखने टाइम में। इसको राइट डाउन करो, फिर मैं 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। चलिए राइट डाउन फटाफट। ओके, नाउ वी टॉकिंग अबाउट द डायमेंशन ऑफ चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। तो अगर मैं बात करूंगा चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, तो फर्स्ट वी नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ चार्ज। तो फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इक्वल्स टू IT। Q इक्वल्स टू IT, I इज द करेंट एंड T इज द टाइम। तो अगर मैं बात करूंगा डायमेंशन ऑफ Q, तो I का डायमेंशन हमने क्या रिप्रेजेंटेशन किया था, I बोला था, एंड T इज द सेकेंड। सेकेंड का हमारा क्या होता है, T। तो अगर मैं बात करूंगा डायमेंशन ऑफ Q, तो डायमेंशन ऑफ Q इक्वल्स टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज का क्या हुआ, दैट इज I का पावर 1 एंड T का पावर 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ Q। ओके,
तो डायमेंशन ऑफ क्यू ये रहा। अब मैं बात करूंगा कि डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। तो पोटेंशियल में हम जानते हैं बच्चों की जो पोटेंशियल जो होता है दैट इज द पहले तो बात करूंगा पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर एनर्जी की बात करेंगे तो जो भी एनर्जी इक्वल्स टू वी आई इंटू टी, दिस इज द एनर्जी, फर्स्ट वन इज द एनर्जी एंड दिस इज द पोटेंशियल। हमें फाइंड करना है इसकी डायमेंशन, हमें फाइंड करना है इसकी डायमेंशन। तो सबसे पहले हमें इस एक्सप्रेशन को हम अल्टरेशन करेंगे और हम लिखेंगे v इक्वल्स टू u अपॉन आई टी, u अपॉन v इक्वल्स टू u बाई आई इंटू टी। तो u इज द इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सभी का डायमेंशन सेम होता है। तो अगर एनर्जी है तो इसकी डायमेंशन क्या होगा, m l स्क्वायर t माइनस टू, यह हमने बताया है। एंड दिस इज द i, तो i का डायमेंशन हमारा i ही होगा एंड t का डायमेंशन t है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। तो दिस इज द m l स्क्वायर, t जो हमारा है एक ऊपर जाएगा है तो t माइनस थ्री एंड i ऊपर गया है तो i माइनस वन। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल दोनों में बहुत फर्क है। पोटेंशियल अलग है एंड पोटेंशियल एनर्जी अलग है। दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल, अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोथ आर डिफरेंट थिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल का अगर डायमेंशन फाइंड करना होगा तो m की पावर 1, l की पावर 2, t का पावर माइनस थ्री एंड i का पावर माइनस वन। तो ये हमारा डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। अब मैं बात करूंगा डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, Q इक्वल्स टू सी वी। तो ये हमारा फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, Q इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे दिस इज द कैपेसिटेंस, इसकी हमें चाहिए, इसकी डायमेंशन हमें फाइंड करना था। C इक्वल्स टू व्हाट, Q अपॉन V, Q बाई V। Q का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, तो Q का अभी आपने निकाला यहाँ पे, Q का डायमेंशन आया था I और T। तो ये हमारा Q का डायमेंशन था और V इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल का डायमेंशन आपने यहाँ से लिखा है। तो दिस इज इक्वल्स टू m l स्क्वायर t माइनस थ्री एंड i माइनस वन। इसको जैसे ही सोल्व करोगे तो m की पावर माइनस वन, l यहाँ पे है तो दिस इज l माइनस टू, t माइनस थ्री यहाँ पे है और t ऊपर एक और है, तो सारे एडिटिव हो जाएंगे। तो t की पावर 4 एंड i की बात करते हैं, i माइनस वन ऊपर आई ऊपर, तो i स्क्वायर। तो कैपेसिटेंस की अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो इसको सोल्व कर लेंगे आप। तो m माइनस वन, l माइनस टू, t की बात करें t आपका प्लस 4 हो गया एंड i इक्वल्स टू 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। एंड लास्ट हमारा बात कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। जो भी तो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो v इक्वल्स टू आई आर होता है हमारा, तो r इक्वल्स टू v अपॉन आई। तो यहाँ पे आप देखा है कि v जो पोटेंशियल ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखे हैं। तो पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है, तो पोटेंशियल का डायमेंशन होता है m l स्क्वायर t माइनस थ्री i माइनस वन अपॉन i एक और है। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की अगर डायमेंशन की बात करोगे तो m1 l स्क्वायर t माइनस थ्री और i माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है बच्चों तो उसको भी आप डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से। तो ये हमारा वीडियो 4 है यूनिट डायमेंशन का। इसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस। इस डायमेंशन को हम कैसे यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं और बाकी सारे डायमेंशन कहाँ कहाँ इसका हम एप्लीकेशन ले रहे हैं। तो बच्चों इसको आप रिवाइज करिए, फिर मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।